بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو کیوں پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کون کون سی خصوصیات رکھی ہیں، اور مچھلی کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، کیا تمام قسم کی مچھلیاں حلال ہے یا کچھ حرام ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ جب ایک شخص نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، یا مولا علی، مچھلی کی زبان کیوں نہیں ہوتی، یعنی مچھلی کی جیب کیوں نہیں ہوتی اور یہ پانی میں ہی کیوں رہتی ہے، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب بتایا تھا۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مچھلی کی دعوت کی تھی تو اس وقت کیا ہوا تھا، اور اگر کوئی شخص مچھلی کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی، یعنی اس کا مطلب کیا نکلے گا۔ میرے دوستو، مچھلی پانی میں پیدا ہونے والا مشہور جانور ہے اور یہ بہت قسم کی ہوتی ہیں اور ہر قسم کا الگ الگ نام ہے۔ جس طرح کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے 1000 قسم بنائے ہیں، جن میں سے 600 پانی میں اور 400 زمین میں بسائے ہیں۔ مچھلی کی ایک قسم اتنی بڑی بھی ہے کہ انسان اس کو ایک بار میں پورا نہیں دیکھ سکتا، اور اتنی چھوٹی بھی ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتی۔ مچھلیاں پانی میں اس طرح سانس لیتی ہیں جس طرح کے انسان اور زمین کے دوسرے جانور ہوا میں سانس لیتے ہیں، اور مچھلی کو زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان اور زمینی جانور کے لیے ہوا ضروری ہے۔ اور امام جاہد رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ مچھلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پانی کے اندر کرتی ہے، پانی کے اوپر نہیں کرتی۔ زمینی ہوا کہ جو پرندوں کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اگر اس ہوا میں 1 گھنٹہ بھی مچھلی کو چھوڑ دیا جائے تو یہ مر جاتی ہے۔ میرے دوستو، جانوروں کی جانکاری رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ مچھلی کا پیٹ اس کے منہ کے قریب ہونے کی وجہ سے یہ ٹھنڈے مزاج کی ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ بہت کھاتی ہے۔ مچھلی کی گردن نہیں ہوتی اور اس کے پیٹ میں ہوا بالکل نہیں پہنچتی، اور نہ وہ بولتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی کے پھیپھڑے نہیں ہوتے، یہ بھی مشہور ہے کہ گھوڑوں کی تلی اور اونٹ کے پتا نہیں ہوتے۔ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، اسی لیے چھوٹی مچھلی کنارے کے قریب کم پانی میں آ جاتی ہے، کیونکہ بڑی مچھلی کم پانی میں نہیں رک سکتی، اور مچھلی تیز رفتار ہوتی ہے۔ جس طرح کے سانپ تیز دوڑتا ہے، اسی طرح مچھلیاں بھی تیز تیرتی ہیں، اور کچھ مچھلیاں نر مادہ کے ملاپ سے پیدا ہوتی ہیں اور کچھ کیچڑ سے پیدا ہوتی ہیں۔ جس طرح کے مرغی وغیرہ کے انڈوں میں سفیدی اور زردی ہوتی ہے، مچھلیوں کے انڈوں میں سفیدی اور زردی نہیں ہوتی، بلکہ ایک رنگ ہوتے ہیں۔ اور مچھلیوں میں ایک قسم وہ بھی ہے جو سانپ کی شکل میں ہوتی ہے۔ ایک مچھلی اور ہوتی ہے جس کو عربی میں ریادہ گرجنے والی مچھلی کہتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی مچھلی ہوتی ہے، مگر اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ جال میں پھنس جاتی ہے تو جال اگر شکاری کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ کانپنے لگتا ہے، اس لیے شکاری کیونکہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، تو جب کبھی وہ مچھلی جال میں آ جاتی ہے تو اس کی رسی کو وہ کسی درخت سے باندھ دیتے ہیں، تب تک جب تک کہ وہ مر نہیں جاتی۔ وہ رسی کو نہیں کھولتے، اس لیے کیونکہ مرنے کے بعد اس کی یہ خاصیت ختم ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، سائنٹسٹ مچھلیوں کی اب تک 21,000 سے زیادہ قسموں کا پتہ لگا چکے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق مچھلی صرف کھانے کی چیز نہیں بلکہ کئی بیماریوں کا بہترین علاج بھی ہے۔ خاص طور پر چربی دار مچھلیاں دوائی کا اثر رکھتی ہیں۔ ان کے کھانے سے ایسی بہت سی بیماریاں جن کا تعلق امیونٹی پاور سے ہوتا ہے، ان بیماریوں سے بچاؤ آسان ہو جاتا ہے۔ مچھلی میں جو فیٹی ایسڈ پائے جاتے ہیں وہ اومیگا 3 کہلاتے ہیں۔ یہ ایسڈ جسم میں آنے والی ہر طرح کی بیماریوں کو روکتی ہے۔ مچھلی کی چربی کی اہمیت اور اس کے فائدوں کا احساس تقریباً 70 سال پہلے ہوا تھا۔ اس وقت یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ دنیا کی انسانوں کے صحت کے لیے چربی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، تو آخر اسکیمو بے حساب چربی کھا کر بیماریوں سے کیوں بچے رہتے ہیں؟ ان کو دل کی بیماری کبھی نہیں ہوتی، حالانکہ وہ بہت زیادہ مچھلی کی چربی اور اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے خون میں کولیسٹرول کا لیول نارمل ہوتا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسکیمو روزانہ جو سمندری چیزیں کھاتے ہیں وہ تمام کی تمام اومیگا 3 سے بھرپور ہوتی ہیں۔ سمندر کے کنارے رہنے والے لوگوں کو دل کی بیماری بہت کم ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ مچھلی بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ مچھلی کم کھانے سے بھی دل کی حفاظت ہوتی ہے۔ کچھ قسم کی مچھلیاں، کچھ طرح کی مچھلیاں کئی طرح کے رنگ بھی پہچان سکتی ہیں۔ آرچر نامی مچھلی انسانی چہرے بھی پہچانتی ہیں۔ مچھلیوں کے کان انسانوں کے کانوں کی طرح باہر نہیں ہوتے، بلکہ ان کے سر میں 2 سوراخ ہوتے ہیں جنہیں اوتھولیٹ کہا جاتا ہے،
और इन्हीं के जरिए ये आवाजों को सुनती हैं, जबकि इनकी चमड़ी पर मौजूद लेदर लाइंस भी इन्हें धीमी आवाजें और पानी में आने वाली आवाजों को महसूस करने में मदद देते हैं। इलेक्ट्रिक ईल एक ऐसी मछली है जिसे हाथ लगाने से 600 वोल्ट बिजली का झटका लगता है। मेरे दोस्तों, मछली का हुक्म ये है कि मछली इस्लाम में हलाल है और मछली की तमाम किस्में बगैर ज़बह किए हुए हलाल है, चाहे वो मरी हुई ही क्यों ना हो और इसके मौत की वजह मालूम हो या ना हो, हर सूरत में हलाल है। क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए 2 मुर्दार हलाल कर दिए, यानी मछली और टिड्डी। मेरे दोस्तों, मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक यहूदी ने सवाल किया कि जन्नती को जन्नत में सबसे पहले क्या खाने को मिलेगा? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मछली के कलेजे का टुकड़ा। मेरे दोस्तों, मछली की पैदाइश के बारे में इमाम हाकिम ने हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो से एक रिवायत नकल की है। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया, फिर इसे कहा लिख। कलम ने कहा क्या लिखूं? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया तकदीर लिख। तो कलम ने उस दिन से लेकर क़यामत तक पेश आने वाले तमाम हालात और तमाम चीजें लिख दी। और आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का अर्श पानी पर था और पानी से भाप उठी और इससे आसमान बनकर जाहिर हो गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मछली को पैदा फरमाया और जमीन को इस पर बिछा दिया। जमीन मछली की पीठ पर थी। मछली ने करवट बदलना चाही तो जमीन हिलने लगी, लिहाजा पहाड़ों को पैदा किया गया और उन पहाड़ों को जमीन पर गाड़ दिया। इससे जमीन नहीं हिलती। और काब बिन अहबार रदी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि इब्लीस जल्दी से इस मछली के पास पहुंचा जिसके पीठ पर पूरी जमीन रखी है। उसके दिल में वसवसा डाला कि ए लूतिया, उस मछली को मुखातिब करते हुए कहा, तुझे कुछ पता भी है कि तेरी पीठ पर कितने लोग और कितने जानवर, दरख्त और पहाड़ वगैरह हैं? अगर तू इन सब को झाड़ कर अपनी पीठ से गिरा दे तो तुझे आराम मिल जाएगा। लूतिया ने जैसे ही ऐसा करने के बारे में सोचा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त इसके पास एक कीड़ा भेज दिया जो उसकी नाक में घुसकर इसके दिमाग तक पहुंच गया। मछली इस तकलीफ की वजह से अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद करने लगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कीड़े को निकाल दिया। हजरत काब कहते हैं कि उस जात की कसम जिसके कब्जाए कुदरत में मेरी जान है, वो मछली इस कीड़े को और वो कीड़ा इस मछली को बराबर देखते रहे। अगर मछली फिर इस हरकत के बारे में सोचे तो फिर कीड़ा इसी तरह इसके दिमाग में पहुंच जाएगा जैसे कि पहले पहुंचा था। मेरे दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि एक शख्स हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल करने पर कि मछली की जबान क्यों नहीं होती और ये पानी में ही क्यों रहती है, तो हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या जवाब दिया था। मेरे दोस्तों, हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स आकर कहने लगा, या अली, हर जानवर के मुंह में जबान यानी जीभ होती है, लेकिन मछली के मुंह में जबान यानी जीभ क्यों नहीं होती और मछली पानी में ही क्यों रहती है? इस पर मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने मछली के मुंह में जबान यानी जीभ भी दी थी और इसको वो ताकत भी दी थी कि वो जमीन पर चल सके, मगर अफसोस कि इसने खुद पर ही जुल्म किया। वो शख्स कहने लगा, या मौला अली, कैसा जुल्म? इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में रूह को डाला और ये हुक्म दिया कि हर फरिश्ता इसको सजदा करे और शैतान इनकार कर बैठा, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करके ये कहने लगा कि मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी का बना हुआ है, लिहाजा मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इसको सजदा नहीं करूँगा। तो यूं शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दरबार से निकाल दिया। वो बदसूरत बनकर जमीन पर जैसे गिरा, इंसान से जलन और नफरत के साथ चीखने लगा और हर किसी को बताने लगा कि इंसान इस जमीन पर जुल्म करेगा। ऐ शख्स, उस वक्त मछलियां जमीन पर भी चला करती थी और पानी में भी रहा करती थी। इसके मुंह में भी जबान यानी जीभ हुआ करती थी। शैतान ने सबसे पहले मछलियों को भटकाया और ये कहा कि जब इंसान जमीन पर आएगा तो वो तुम्हें जिंदा अपने छुरी से काटेगा अपना पेट भरने के लिए। मछली ने जब ये सुना तो वो समंदर के हर एक मखलूक को इंसान के खिलाफ करने लगी। तो यूं अल्लाह तबारक व तआला ने मछली के मुंह से जबान यानी जीभ को गायब करके इसकी जगह मुसीबत पैदा कर दिया और ये हुक्म जारी किया कि कोई भी इंसान तुम्हें जिंदा नहीं काटेगा
तुम्हारी हद कुदरत ने पानी तक रख दी है। जब तुम पानी से जुदा होगी तो खुद ही तड़प कर मरने लगोगी। मेरे दोस्तों, तभी से हलाल मछली पानी से अलग होती है तो वो तड़पने लगती है और इसके जिस्म का सारा खून इसके गले में आकर जमा हो जाता है। इसलिए मछली को ज़बह नहीं किया जाता, क्योंकि ज़बह करना इसलिए वाजिब है ताकि जानवर की रगों का सारा खून गोश्त से अलग होकर बह जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने मछली पर यह कानून जारी किया है कि जब वो पानी से जुदा होकर तड़पती है तो मछली का सारा खून मछली के गले में आकर जमा हो जाता है और यूं मछली का गोश्त खून से पाक हो जाता है। मेरे दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मछली की दावत की थी तो उस वक्त क्या वाक़या पेश आया था। इमाम कसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दरख्वास्त की कि ऐ अल्लाह, अगर तू इजाजत दे तो मैं एक दिन तमाम हैवानात की दावत करता हूँ। बस अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इजाजत दे दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक लंबे वक्त तक दावत का सामान जमा किया। बस अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर से सिर्फ एक मछली दावत खाने के लिए भेजी और उस मछली ने वो तमाम सामान जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जमा किया था सिर्फ एक ही बार में खा लिया। और जब इसका पेट ना भरा तो इस मछली ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से और खाना मांगा। बस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मछली से पूछा, क्या तू हर रोज इतना ही खाना खाती है? बस मछली ने कहा कि मेरी रोजाना की खुराक इससे 3 गुना ज्यादा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला मुझे इसके अलावा और कुछ खाने को नहीं देगा। बस आपको दावत नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं आपकी दावत करने की वजह से बाकी दिन भूखी रहूंगी। मेरे दोस्तों, अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इस वाक़ये में अल्लाह तबारक व तआला के कुदरत के करिश्मे और उसकी बादशाहत की अजमत और उसका कितना बड़ा खजाना है, ये जानकारी मिलती है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने बड़े बादशाह और पैगंबर होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला की मखलूकात में से सिर्फ एक मछली का पेट भी नहीं भर सके। बस पाक है वो जात जो अपनी बेशुमार मखलूकात को रिज़्क अता करती है। मेरे दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि अगर कोई शख्स मछली को अपने ख्वाब में देखे तो उसकी क्या ताबीर होगी। मेरे दोस्तों, इल्म वालों का कहना है कि मछली को अपने ख्वाब में देखना इस बात की निशानी है कि वो बादशाह का वजीर बनेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो मछलियों को पकड़ रहा है तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि वो बादशाह के लश्कर से माल हासिल करेगा। अगर किसी ने अपने आप को कुएं में मछली पकड़ते हुए देखा तो इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला लूती है। और अगर किसी ने ये देखा कि ये साफ पानी में से मछली का शिकार कर रहा है तो इसके लिए नेक लड़के की बसारत है। और ख्वाब में तली हुई मछली को देखना इस बात की निशानी है कि ख्वाब देखने वाला दीनी दावत को कबूल करेगा या इसकी दुआ कबूल होगी। और बड़ी मछलियों को देखना माले गनीमत की तरफ इशारा होता है और छोटी मछलियों को देखना आलमे मसाइब की तरफ इशारा होता है, क्योंकि छोटी मछलियों में गोश्त की निस्बत कांटे ज्यादा होते हैं और छोटी मछली को खाने में भी परेशानी भी ज्यादा होती है। और अगर किसी शख्स ने दरिया में ताजा मछली किसी किस्म के आला के जरिए शिकार की है तो इसकी ताबीर ये है कि वो रिज़्क़े हलाल में साई यानी कोशिश कर रहा है और इसको वो हासिल कर लेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी तमाम नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।